Welcome guys to Advanced Accounting Chapter 3 Unit 2. Chapter 3 or Chapter 4? Chapter 4 Unit 2 Accounting Standard 3 Cash Flow Statement. Okay. Learning objective और outcomes दिए हैं यहाँ पे. What are cash and cash equivalents? Presentation of cash flow. Reporting cash flow from operating activity. Reporting cash flow from investment and financial activity. Reporting cash flow on net basis. Foreign currency cash flow. Extraordinary items. Interest and dividend. Taxes on income. Non-cash transaction. ये चीजें हम सीखने वाले हैं. Yes or no? Yes. Is there any problem? No? Good. So don't put your finger in. Yeah. Now introduction. You know the standard is mandatory for non-SMC, that is non-small and medium companies and enterprises which fall in this category of level 1. You know level 1 now? Yes. Everyone? Yes. Sure? Yes. What is level 1? Turnover more than 250 crores. Yes, turnover more than 250 crores. And loan not exceeds 50 crores. I think exceeds 50 crores. It exceeds 50 crores. Yeah. Pakka. At the end of the relevant accounting period, for all other enterprises, though it is not compulsory, but it is encouraged to prepare such statements. However, the Companies Act 2013 mandates preparation of cash flow statement by all companies except OPC, small company and dormant company. Where an enterprise was not covered by this statement during the previous year but qualifies in the current accounting year, they are not supposed to disclose the figures for corresponding previous years. Okay, whereas if an enterprise qualifies under this statement to prepare the cash flow statement during the previous year but now disqualified, will continue to prepare cash flow statement for another 2 consecutive years. जो बोला था एक बार क्वालिफाई हो गया वो कंटिन्यू करेगा. कोई दिक्कत? श्योर? डेफिनेटली जाने का आगे. सो अभी एक नोट दिया है, उसमें सेक्शन दिया है कंपनी लॉ 2013 का. सो अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with respect of one person company, small company, dormant company may not include cash flow statement as per the amendment under chapter 1 clause 40 subsection clause 40 of subsection 2. An exemption has been provided by notification dated 13 June 2017 under section 462 of Companies Act 2013 to a startup private company besides one person company, small company, dormant company. As per amendment, a startup private company is not required to include cash flow statement in the financial statement. क्योंकि आपको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 टाइप के. फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट, थर्ड cash flow statement. Good. Thus, the financial statement with respect to one person company, small company, dormant company and private company, if such private company is a startup, may not include the cash flow statement. ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं है. अभी मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में आ जाता हूं. बहुत आसान चीज है. अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखो, समझो. कैश फ्लो होता क्या है? क्या होता है कैश फ्लो? Good. Cash is flowing in, cash is going out. Yes, cash is coming in, cash is going out. Or bank is coming in, bank is going out. What are your activities? What is your business? Trading. चलो अपन ट्रेडिंग पकड़ लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो, तुम ट्रेडिंग पकड़ो. क्या है ट्रेडिंग में? We have to purchase and sell. We buy. Yes. We sell. What? We buy. We sell the goods. At the time of buying of the goods, we'll have to pay the cash. Yes. At time of sale, we'll get cash. Out of the received cash, we will pay for buying the stock as well as for salaries, for admin expenses, for other expenses, bank interest if we borrow some loan from the bank. If it is a company, if we pay dividend, we'll have to pay cash. We'll give it through bank, but in this sense, we will pay cash. So all these activities are the reasons
for cash flow. Cash is coming in, cash is going out. Now consider working capital. Think about the balance sheet position. If you are having 3 lakh rupees debtor in the previous year, and in current year your debtors has been raised to 4 lakh rupees. What is the implication of my statement? Debtors 3 lakhs थे, अभी कितने हो गए? 4,000. तो मेरे स्टेटमेंट का मतलब कैश आया है या कैश गया है? तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कैश गया है. क्यों? पिछले साल मुझे 3 लाख आना था, ये साल मुझे 4 लाख आना है. इसका मतलब मैंने 1 लाख की उधारी ज्यादा दिया ना. अगर वो डेटर 2.5 लाख होते थे तो 50,000 मैंने डेटर से रिकवर किया. आज मेरा 1 लाख ब्लॉक हो गया. वही क्रेडिटर के बारे में सोचो. अगर मेरे क्रेडिटर पिछले साल 2 लाख के थे, ये साल 3 लाख के हो गए, मतलब मेरे जेब में पैसा पड़ा है. पिछले साल मेरे को उधारी थी 2 लाख की, आज उधारी कितनी होगी? 3 लाख की. मतलब मेरे धंधे से कैश बाहर गई है क्या? नहीं. अगर वही डेटर 1.5 लाख रुपए हो गए, फिर वही क्रेडिटर 1.5 लाख रुपए हो गया, तो पैसे बाहर गए. 2 लाख की मेरी उधारी थी, आज 1.5 लाख की है, मतलब 50 दिया ना मैंने. तो ये भी चीज अपने को सोचनी पड़ती है इफ वी आर कंपेयरिंग द बैलेंस शीट्स. सो कैश फ्लो इज वेरी इजी थिंग. अपनी 3 टाइप की एक्टिविटीज रहती है. कितने टाइप की? 3. पहली कौन सी रहती है? ऑपरेटिंग, मतलब धंधा, सीधा धंधा. ट्रेडिंग 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 खत्म. रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी वही है, वहां पे खर्चा भी हो रहा है, अपन खरीद रहे माल, बेच रहे माल, एडमिन एक्सपेंसेस करे, बहुत सारी चीजें करे, वो सब कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग. देख P&L में बहुत सारे खर्चे डाले अपन ने. अपने को देखना पड़ेगा कि उनका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर उनका पेमेंट हुआ है तो मेरी कैश बाहर गई है. अगर उनका पेमेंट नहीं हुआ है, वो एक्रूड है, इसका मतलब कैश बाहर नहीं गई है. अपने को देखना पड़ेगा सेल कितना हुआ है. अभी सेल हुआ है डार्लिंग, क्या सेल हुआ है, लेकिन मेरे डेटर्स बढ़ गए. मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं आए हैं. आप समझ रहे हो? सो अपने को हर एक आइटम जो है ट्रेडिंग P&L का, ऑपरेटिंग के टाइम पे अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा कि बेटा इसमें कितनी कैश इनवर्ड हुई है और कितनी कैश आउटवर्ड हुई है. अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा. अगर तुम्हारा ये व्यू क्लियर रहता है तो तुमको कोई भी एडजस्टमेंट नीचे दी गई तो उसका इम्प्लीकेशन वो P&L स्टेटमेंट पे करोगे तो अपने आप कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों को तुम जज कर पाओगे और उतना तुम कंसिडरेशन में लेके आंसर लिख पाओगे. कोई दिक्कत? श्योर. सो क्वेश्चन कौन से टाइप का आएगा? कुछ नहीं, तुमको P&L बैलेंस शीट दिया रहेगा और कैश फ्लो निकालने को बोला रहेगा, नीचे एडजस्टमेंट दी रहेगी, तो तुमको कंपैरेटिव करना पड़ेगा पिछले साल का ये साल का, एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सेल्स एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है, परचेस से कितना कैश बाहर गया है. इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑपरेटिंग. देखो वहां पे अपन ने बैंक इंटरेस्ट भी पे किया. अभी बैंक इंटरेस्ट पे किया, लेकिन बैंक इंटरेस्ट तो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं कंसिडर करता. मैं उसको कौन सा पार्ट कंसिडर करता हूँ? फाइनेंस एक्टिविटी. तो 3 टाइप की एक्टिविटी में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले एक्टिविटी क्या बेटा? ऑपरेटिंग. दूसरी, सही बात है, और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट. दूसरी इन्वेस्टमेंट. तीसरा फाइनेंस, मतलब कर्जा कितना उठाया, इंटरेस्ट कितना भरा, उसके बाद डिवेंचर इशू किए क्या, उसके बाद शेयर्स इशू किए क्या. ये हर एक चीज मेरे को क्या है? कैश फ्लो दे रही है. अगर मैंने शेयर्स इशू किए लेकिन आधे ही पैसे लिए, बाकी कॉल्ड अप है, पेड अप नहीं है, तो कैश इनफ्लो हुआ है क्या? नहीं हुआ. तो ये चीजें अपने को देखना पड़ेगा. कोई दिक्कत? पक्का समझा? ग्रेट. तो यही ऑब्जेक्टिव दिया होगा. देखते हैं. टू आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कैश फ्लो, कैश इक्विवेलेंट, टू डिटरमाइन फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश and cash equivalent, to assess the liability to generate cash and cash equivalent, to estimate the further requirement of generating cash equivalent, to compare the operational efficiency of different enterprises, to study the insolvency and liquidity position of the enterprise,
as an indicator of the amount, timing, certainty of future cash flow, to check the accuracy of the past statements of future cash flow, then in examining the relationship between profitability and net cash flow and the impact on change in price. Now, meaning of the term cash and cash equivalents for the cash flow statement. So, cash and cash equivalent क्या होता है देखते हैं. For the purpose of cash flow consists the following: cash in hand and deposit payable on demand with any bank, other financial institution. Cash equivalents, which are short-term, highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash and are subject to insignificant risk of change in value. A short-term investment is one which is due for maturity within 3 months from the date of acquisition. Investment in shares are normally taken as cash equivalent because of uncertainties associated with them as to realizable value. नीचे जाते मीनिंग ऑफ द टर्म कैश फ्लो. मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया क्या है कैश फ्लो का मीनिंग. बोलो. मूवमेंट्स इन कैश और कैश इक्विवेलेंट. मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अभी तो बोला ना अपन ने. इनफ्लो आउटफ्लो. मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनटू योर बिजनेस. आया ना. खत्म. वही दिया होगा डेफिनेशन. दूसरा क्या बोलेगा देखो. कैश इक्विवेलेंट फ्लोज आर इनफ्लोज outflows of cash and cash equivalent. खत्म. Any transaction which does not result in cash flow should not be reported in cash flow statement. जिसका कैश में इम्पैक्ट ही नहीं है वो काहे को रिपोर्ट करेंगे. एक्रूड सैलरी करेंगे कि कैश में रिपोर्ट नहीं करेंगे. क्यों. उससे कैश फ्लो हुआ ही नहीं है. Movements within cash or cash equivalents are not cash flow because they do not change cash as defined by AS 3. Within बोला है. Which is sum of cash बैंक कैश इक्विवेलेंट. मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ. तूने बैंक से कैश विड्रॉ किया. तूने तेरी कैश बैंक में डिपॉजिट किया. वो कैश फ्लो है क्या. नहीं. नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आर नॉट कैश फ्लो. लैंग्वेज से कंफ्यूज हो गया था. आया ना. वो वैसा नहीं था. उसका बोलना था विदिन. मतलब एक कैश सोर्स से दूसरे कैश सोर्स में जा रहा तो उसको विदिन बोलेंगे. तो एक कम होके दूसरा बढ़ रहा. फर्क क्या पड़ रहा. कुछ भी नहीं. हाँ तो इनफ्लो तो हो नहीं रहा. पक्का. वही बोलना है. कोई दिक्कत. खत्म. ये एग्जांपल तुम पढ़ो घर पे. कोई दिक्कत नहीं. टाइप्स ऑफ कैश फ्लो क्या है बेटा. टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. अरे 3 टाइप बोला ना मैंने अभी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग. दूसरा इन्वेस्टमेंट. तीसरा फाइनेंस. ऑपरेटिंग में क्या आएगा. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा. हाँ शेयर्स में इन्वेस्ट किया. किसी के दूसरे इसमें इन्वेस्ट किया. दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. हाँ बोल सकता है. कैपिटल एसेट खरीदी गया तो 2 रख के दूंगा. कैपिटल एसेट खरीदी किया तो इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग. कैपिटल एसेट खरीदी गया. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया. क्या है वो नॉन कैश आइटम है. P&L में तू खर्चा करके डाल रहा लेकिन खर्चा हो रहा क्या. नहीं. कैश फ्लो हो रहा क्या. नहीं हो रहा. इन्वेस्टमेंट करते टाइम कैश फ्लो है. फाइनेंसिंग. कोई दिक्कत. Separate presentation of each type of cash flow in the cash flow statement improves usefulness of cash flow information. Okay. The operating cash flows are cash flows generated by operating activities or by other activities that are not investing or finance activities. Okay. खत्म. मतलब धंधे के एक्टिविटीज और एनी अदर एक्टिविटीज विच विल नॉट कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके. गुड डार्लिंग. एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैश परचेस, सेल ऑफ गुड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर फॉर गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस. ओके. गुड. हो गया ऑपरेटिंग. समझा. सो अभी इन्वेस्टमेंट देखते हैं. इन्वेस्टमेंट मैंने बोला क्या है डार्लिंग. फिक्स एसेट खरीदा. फिक्स एसेट बेचा. शेयर्स खरीदा. शेयर बेचा. यस और नो. लोन दिया.
तो लोन दिया ना, ये फाइनेंस में कैसे जाएगा? लोन लिया तो फाइनेंस में आएगा, रीपे किया तो वहां पे आएगा, दिया तो नहीं। श्योर ना? ए बी सी डी दिया है, देख देख। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ओके। लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम द अदर एंटिटी other than loans by financial enterprise, naturally. Payment to acquire fixed asset, interest and dividend earned other than interest and dividend earned by financial, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो इंटरेस्ट अर्न है वो ऑपरेटिंग है, तेरा मेरा इन्वेस्टमेंट। ग्रेट। नाउ फाइनेंसिंग कैश फ्लो। फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है जान रेमन? अरे क्या है? अरे कैपिटल चेंज हुआ धंधे का, कर्जा चेंज हुआ, यस और नो? देखो एग्जांपल इंक्लूड्स इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, क्यों पैसा बाहर जा रहा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो ऑपरेटिंग में जाएगा। खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, net cash flow, operating cash activity, operating activity, investment activity and financial activity. ऑपरेटिंग में दो चीज है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट, फाइनेंस में डायरेक्ट। खत्म। तुम बोलोगे सर ये क्या है? मैं समझाऊं। देख, ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आया, डायरेक्ट रिकॉर्ड किया, सेल है रिकॉर्ड किया, नेट से इनफ्लो है रिकॉर्ड किया, आउटफ्लो है रिकॉर्ड किया, इट्स डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? नेट प्रॉफिट। बस, गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेट प्रॉफिट दिया, P&L दिया है तेरे को, अभी नेट प्रॉफिट से तेरे को कैश फ्लो पे जाने का है, तो उल्टा घुसना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? इंटरेस्ट लेस होगा कहां से? फाइनेंस में से। विजुअलाइज करना। देख ऐसा है तेरा टी शेप में, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या है? डेप्रिसिएशन, ये नेट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन जाने के बाद नेट प्रॉफिट आया, डेप्रिसिएशन इज आउटफ्लो, नो नॉन कैश आइटम, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, और बैंक लोन का इंटरेस्ट तो फाइनेंस में जाने वाला है, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो लेस कहां से करेगा? फाइनेंस में से। समझ रहे हो? ग्रेट है, ग्रेट। उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट है, फाइनेंसिंग का डायरेक्ट मेथड है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है बेटा? अरे अगर फाइनेंस कंपनी रही और उन्होंने लोन्स एडवांस किए है, उस पर तो ऑपरेटिंग जाएगा। अगर अपन ने किया तो देखा ना अपन ने, वही चीजें वापस दिए, कोई दिक्कत? श्योर ना? देखिए यहाँ पे दिखा होगा, देख, लोन एडवांसेस गिवन इंटरेस्ट ऑन ब्ला 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 ब्ला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। बस क्या? फॉर फाइनेंशियल लोन एडवांस गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन देम, इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। खत्म। लोन एडवांसेस गिवन टू सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। लोन एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज एंड इंटरेस्ट ऑन देम आर ऑपरेटिंग, ये इंपॉर्टेंट था, डी। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज एंड इंटरेस्ट ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। ये थोड़ा अलग लगा कि नहीं लगा? मैंने मेरे एम्प्लॉय को एडवांस दिया और उससे मैंने क्या लिया? इंटरेस्ट लिया, तो ये कहां पे जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। ये कहां पे जाएगा? ऑपरेटिंग में। ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा नहीं। कोई दिक्कत? एडवांस पेमेंट टू सप्लायर एंड इंटरेस्ट ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ आवर एंटरप्राइज। DNER इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, DNER IMP, क्योंकि ये अपने को ध्यान में नहीं रहता। अपने को बेसिक क्या ध्यान में रहता है? अगर एडवांस दिया तो साला क्या है? इन्वेस्टमेंट है। नहीं, अगर एम्प्लॉय को दिया तो ऑपरेटिंग में लो, अगर सप्लायर को दिया दिक्कत नहीं डार्लिंग, लास्ट का भी पढ़ेंगे। F इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले बंदे ने अपने को लेट पेमेंट दिया और अपन ने उससे क्या लिया? इंटरेस्ट लिया, तो ये कहां पे डालेंगे अपन? ऑपरेटिंग। नाउ लोन एडवांस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा तो उन्होंने अगर लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया तो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में, क्योंकि उनका धंधा वही है।
लोन एंड एडवांस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल। अपने लिए क्या है बेटा, ये सेकंड लाइन में नॉन फाइनेंशियल में ये है फाइनेंसिंग। कोई दिक्कत? लोन एडवांस टेकन फ्रॉम सब्सिडीज इंटरेस्ट पेड टू देम आर फाइनेंसिंग, ये भी क्या है फाइनेंसिंग। एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर एंड इंटरेस्ट पेड आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल। डी इंपॉर्टेंट, समझा क्या? जैसे ऊपर था नीचे भी, इंटरेस्ट पेड टू द सप्लायर फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। यस, ये भी क्या बेटा IMP। देन इंटरेस्ट टेकन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 16 आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। समझा क्या? इंटरेस्ट taken as a part of inventory cost in accordance to AS 16 are operating। अगर ये AS 16 के हिसाब से मशीनरी परचेस के लिए इंटरेस्ट दिया होगा तो कहाँ जाएगा वो? इन्वेस्टमेंट में जाएगा। क्यों? बोरोइंग कॉस्ट हो गई ना। AS 16 क्या है? तो वही ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इन्वेंट्री के लिए। सो इन्वेंट्री क्या है? ऑपरेटिंग है। सो ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत डार्लिंग? सो इसको भी क्या बोलता हूं मैं? IMP। खत्म। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न। देख, इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न ऑन देम ऑर्डिनरी कोर्स रहा तो ऑपरेटिंग, अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज रही तो इन्वेस्टमेंट। यस, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एंड डिविडेंड अर्न आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, जो अपन ने ऊपर देख लिया। Then dividend paid. These are financing outflow, financial cash outflow. Income tax क्या बेटे? ऑपरेटिंग। धंधे में अगर तुम कमा रहे हो तभी तुम टैक्स पे करोगे ना, तो इट विल बी ऑपरेटिंग। देखो, टैक्सेस पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। TDS against income are operating cash outflows if concerned income or operating income, and investing cash outflow if the concerned income is from investment income। समझा क्या? अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसका TDS कटा होगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। मैंने माल बेचा, उसके अगेंस्ट मेरा TDS कट हुआ तो ऑपरेटिंग। मैंने इंटरेस्ट अर्न किया तेरे को लोन देके, तूने मेरा TDS कट किया वो इंटरेस्ट पे, कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? क्या हुआ सर? अगर हमने लोन लिया है और लोन में से अगर TDS कट हुआ तो फिर हम फाइनेंस में जाएंगे। अपन ने लोन लिया है हाँ। और अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ, तो अगर अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फाइनेंस में जाएगा। आया ना? खत्म। उसके बाद TTS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग कैश inflows if concerned expenses are operating expenses, and financial cash inflows if the concerned expenses are financing expenses। जो तेरा सवाल था आया क्या? yes, sir. अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं Yes. और उसके ऊपर TDS काट रहा हूं yes, तो इट विल बी फाइनेंशियल कैश इनफ्लो, कि उतनी कैश बाहर नहीं जा रही, लेकिन मैं TDS भी जमा कर रहा हूं ना गवर्नमेंट को। क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएंगी। समझा? yes, sir. उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये लॉस ऑफ स्टॉक के लिए रहा तो ऑपरेटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बट ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट रहा तो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक रहा तो ऑपरेटिंग। यस और नो? yes, पक्का? और लॉस ऑफ फिक्स एसेट रहा तो इन्वेस्टमेंट। यस और नो? yes, yes. खत्म। तेरे को सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके दिखाना पड़ेगा वो डिस्क्लोजर। रिकॉर्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। देखो, डायरेक्ट मेथड में मैंने तुमको क्या बोला? सीधा सेल लिखो। देखो, वी टेक ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम सेल रिसीवेबल एंड अदर ऑपरेटिंग इनफ्लोज सब्ट्रैक्टेड बाय ग्रॉस पेमेंट फॉर परचेस क्रेडिटर एंड अदर एक्सपेंसेस इग्नोरिंग ऑल नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस। इनडायरेक्ट रहा तो P&L में ऐड करेंगे। प्रॉफिट में देखो, वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस। इलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एनी नॉन कैश आइटम, इन्वेस्टिंग आइटम, फाइनेंसिंग आइटम फ्रॉम सच प्रॉफिट फिगर
that is all such expenses like depreciation, provision, interest paid, loss on sale of asset, etc. are added and interest received etc. are deducted. Adjustment for changes in working capital item are also made ignoring cash and cash equivalent to reach the figures of net cash inflow or cash flow. Direct method is preferred over indirect because direct method gives a clear picture of various sources of cash inflows and outflows, which helps in estimating the figure future cash inflow and outflow. कोई दिक्कत? देखो डायरेक्ट मेथड दिया है पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस लेस पेमेंट फॉर कैश परचेस पेड टू पेबल्स पेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट टू वेजेस सैलरीज पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स या एडजस्टमेंट फॉर ऑर्डिनरी आइटम नीचे दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इंश्योरेंस क्लेम आया वगैरह 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 ये चीज है एंड में क्या आएगा तेरा नेट देख लो एक बार कोई डिफिकल्ट रही तो पूछो सेल कैश में रहा डाल दो डेटर से पैसा है डाल दो सेल ऑफ सर्विस से पैसा है डाल दो खर्चे जो भी किए डाल दो मतलब डिप्रिसिएशन लिया क्या नहीं लिया इंटरेस्ट पेड किया है लिया क्या नहीं लिया समझ रहे हो क्या इंटरेस्ट मिला होगा लिया क्या नहीं लिया है लिया ही नहीं ना P&L रहा तो एडलेस करना पड़ेगा यहाँ पे करने की जरूरत है क्या नहीं अभी इनडायरेक्ट मेथड देख क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L कोई दिक्कत पक्का लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L उसके बाद क्या होता है रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर अपन ने कुछ प्रोविजंस किए होंगे बाकी की चीजें तो उसको रिविजल करने का मतलब ऐड बैक करने का देखो ऐड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया उसके बाद रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम इफेक्ट्स फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो मैंने तुमको बोला था डेटर का चेंज हुआ क्रेडिटर का चेंज हुआ ये सारे इफेक्ट इनडायरेक्ट में कंसिडर करने के उसके बाद टैक्स पेमेंट लेस करने का यस फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के एडजस्टमेंट करने का जैसे प्रीवियसली किया था और आया तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कोई दिक्कत खत्म श्योर नीचे एक चीज दी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट में जाएगा ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा उसके बाद फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ कैश फ्लो प्रिपरेशन ये जो तुमने देखा ना ये देखो और कैश फ्लो is a summary of cash receipt and payment of an enterprise during an accounting period. Any attempt to compile such summary from cash book is impractical due to large volume of transaction. Fortunately, it is possible to compile such summary by comparing financial statement at the beginning and end of the accounting period. पिछले साल का लो चालू साल का लो कंपेयर करो आराम से हो जाएगा Reporting cash flow on net basis. AS3 forbids netting receipts and payment from investing and financial activities. Thus, cash paid on purchase of fixed assets should not be shown net of cash realized from sale and fix. मतलब तुमको दोनों चीजें रिपोर्ट करनी है अगर asset purchase रहा वो भी रिपोर्ट करो asset sold रहा वो भी रिपोर्ट करो If an enterprise pays 50,000 in acquisition of machinery and realizes 10,000 on disposal of furniture, it is not right to show the net cash outflow of 40,000. समझा क्या मतलब तेरे को 50,000 आउटफ्लो भी दिखाना पड़ेगा 10,000 इनफ्लो भी दिखाना पड़ेगा 40,000 दिखा नहीं सकता द एक्सेप्शन टू दिस रूल आर स्टेटेड बिलो इसको भी क्या है बेटा एक्सेप्शन है क्या बेटा कैश फ्लो फ्रॉम में बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस कौन सा है कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर एग्जांपल कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय बैंक अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स समझा उसके बाद कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स फॉर द आइटम्स
which the turnover is quick, the amounts are large and the maturities are short, that is purchase and sale of investment by an investment company, वो नेट दिखा सकती है. S3 permit financial enterprises to report the cash flows on net basis in the following three circumstances. पहली, cash flow on acceptance and repayment of FD with a fixed maturity date, मतलब आया गया तो उसके लिए अपन नेट बता सकते हैं. कैश इनफ्लोज ऑन प्लेसमेंट एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस. थर्ड, कैश फ्लोज ऑन एडवांसेस लोन्स गिवन टू द कस्टमर एंड रिपेमेंट रिसीव्ड देयर फॉर्म, मतलब उनको अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनली एडजस्ट करके उसका नेट फिगर दिखा सकते हैं. आया गया वाला फर्क पड़ने वाला है क्या? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किधर जाएगा, ये सेपरेटली दिखाना पड़ेगा. यस और नो? अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज रही तो ऑपरेटिंग में आएगा, अगर ये नॉन फाइनेंशियल रही तो फाइनेंसिंग में जाएगा. ग्रेट, खत्म. कैश फ्लोस अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज शुड बी क्लासिफाइड एज द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग. इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड should be classified as a cash flow from financing. ठीक है? While interest and dividend earned received should be classified as cash flow from investment activity. Dividend paid should be classified as cash flow from financing. ध्यान में रहेगा? Yes, sir. ये क्लबिंग चेंज नहीं होना चाहिए. Yes, yes. Non-cash transactions. Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalent. Example, issue of bonus share should be excluded from a cash flow statement. अगर बोनस शेयर इश्यू के कैश आई के अंदर नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करो. Such transaction should not be disclosed elsewhere in the financial statement. Should be disclosed elsewhere in the financial statement in way that the provides all relevant information about these investing and financing activity. कोई दिक्कत? No, sir. अपन देंगे ना उसको, नोट टू अकाउंट में देंगे, बैलेंस शीट में देंगे. बिजनेस परचेज, देन एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस, दो चीजें. उसके बाद डिस्क्लोजर, उसके बाद क्या बेटा, प्रॉब्लम. मतलब थ्योरी का पार्ट अभी खत्म होने का है. अभी तुम अगर थ्योरी पढ़ने को बैठे ना तो तुम टाइम पास करते. मैं अभी थ्योरी सिखा रहा हूं, टाइम पास हुआ नहीं हुआ? क्यों? पढ़ो, एनालाइज करो, समझो, आगे चलो. पढ़ो, एनालाइज करो, समझो, स्टोर करो, आगे चलो. ये स्पीड से थ्योरी सीखना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में पूरा बेस है. अगर मैंने प्रॉब्लम लिया रहता तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहते कि यार ये कहां पे डालने का, फाइनेंस में डालने का, इन्वेस्टमेंट में डालने का, कहां पे डालने का. ये प्रॉफिट आ गया, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सेल ऑफ एसेट का, या कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा. अरे इंटरेस्ट पेड है, फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा. अगर इंटरेस्ट पेड रहा एडवांस के ऊपर तो कौन सा एडवांस? सप्लायर एडवांस. सही बात है. रिसीव्ड रहा तो भी ऑपरेटिंग. लोन दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट. लोन लेके पे किया होगा तो फाइनेंस. अगर फाइनेंशियल कंपनी रहा तो ऑपरेटिंग. समझा? ग्रेट. So business purchase, the aggregate cash flow arising from acquisition and disposal of subsidiaries or other business unit should be presented separately and classified as cash flow from investing activities. क्यों? अपनी वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, अपन ने वो कंपनी पूरी की पूरी बेच दी, तो वहां पे जो भी कैश फ्लो है वो अपने को सेपरेटली शो करना पड़ेगा. कहां से? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. The cash flow from disposal and acquisition should not be netted off. उसको netted off कर नहीं सकते, मतलब सेपरेट देना पड़ेगा, खरीदने वाला, बेचने वाला. An enterprise should disclose in aggregate in respect of both acquisition and disposal of subsidiaries other than business unit during the period each of the following. First is the total asset purchase or disposal consideration. दिखाना पड़ेगा अपने को. Yes or no? Then the portion of the purchase or disposal consideration discharged by means of cash or cash equivalent. समझा? अपने को बिजनेस परचेस और बिजनेस सेल सेपरेटली शो करना पड़ेगा, नेट ऑफ कर नहीं सकते. खत्म. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ करंट
assets and liabilities taken over on the business purchase. Business purchase is not operating activity. Thus, while taking the differences between the closing and opening current asset and liabilities for computation of operating cash flow, the closing balances should be reduced by the values of current asset and liabilities taken over. This ensures that the difference reflects the increase or decrease in the current asset and liabilities due to the ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली. मतलब ओपनिंग में अगर अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स मिले तो उसको क्लोजिंग में से लेस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, क्योंकि अपन ने वो डायरेक्ट बाय किए. पक्का? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ज्यादा क्लियर होंगी कंसेप्ट. एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस. एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन. अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है और मेरा ट्रेडिंग का एक्टिविटी है वो, तो उसके अगर गेन हुआ तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में. अगर लॉस हुआ तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में. सही बात है ना. अगर मैंने एसेट खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट. कंसेप्ट तो क्लियर होगी तेरे को. पढ़ने का सिर्फ पढ़ लो. फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट एग्जांपल बैलेंस विद बैंक डेटर्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स are initially recognized by translating them into a reporting currency by the rate of exchange transaction date. On the balance sheet date, these are restated using the rate of exchange on the balance sheet date. The difference in values of in is exchange gain or loss. The exchange gain or loss are recognized in the statement of profit and loss. The exchange gain or loss in respect of cash and cash equivalent in foreign currency, the balance of foreign currency bank account are recognized by the principal aforesaid. These balances are restated in the balance sheet in the reporting currency at the rate of exchange on balance sheet date. The change in the cash or cash equivalent due to exchange gain and losses are however not the cash flows. This being so, the net increase or decrease in the cash or cash equivalent in the cash flow statement are stated exclusively of exchange gain and losses. The resultant difference between the cash equivalent as per the cash flow statement and that recognized in the balance sheet is reconciled in the note on the cash flow statement. क्या समझा? इसका इफेक्ट तुम कैश फ्लो में लेने से बेहतर तुम उसका नेट इफेक्ट लो और उसको नेट नोट के पर्पस पे दो और उसका रिकंसिलेशन नोट में दो कि कहाँ पे बेनिफिट हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ. आइटम वाइज डालो, गेन लॉस, यस, वहां पे रिकॉग्नाइज करो, उसका रिकंसिलेशन दो और उसका नेट इफेक्ट कहाँ पे ले सकते हो तुम, कैश फ्लो. कोई दिक्कत? डिस्क्लोजर्स. ये डिस्क्लोजर दिए. S3 रिक्वायर्स an enterprise to disclose the amount significant of significant cash and cash equivalent balances held by it and not available for its use together with the commentary by the management. This may happen, for example, in case of bank balance held in other country subject to such exchange control or other regulation that the fund is practically of no use. अगर प्रैक्टिकली नो यूज वाले ट्रांजेक्शन रहे, फंड्स रहे, तो तुमको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कोई दिक्कत? S3 encourages disclosure of additional information relevant for understanding the financial position and liquidity of the enterprise together with the commentary by the management. Such information may include the amount of undrawn borrowing facilities that may be available for future operating activities and to settle capital commitment, indicating any restriction on the use of these facilities. याचा इसका मतलब क्या है? पढ़ो और बताओ. क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश फ्लो कंप्लीट होने के बाद अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देने की जरूरत थी और आपने नहीं दी तो बिना काम का आपके मार्क्स कट होंगे. तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ो.
हाँ क्या समझा? म्हणून कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन कळते का मग ती कंपनी लोन घेऊन फक्त बिझनेस चालवते का त्यांच्या ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज ऐसा नहीं है. अनड्रॉन फैसिलिटी मतलब मेरे पास 10 करोड़ की सीसी है, मैंने सिर्फ 1 करोड़ विड्रॉ किया है, 9 करोड़ क्या है मेरी अनड्रॉन है, वो दैट विल बी मेड अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड. ये अपने को चीज उनको देना पड़ेगा. उसके बाद द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑपरेटिंग कैपेसिटी. एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी टू रिप्लेस द ओल्ड सेपरेटली फ्रॉम कैश फ्लोज that represent increase in operating capacity. Example additional machinery purchase to increase production. ये चीजें भी अपने को देना पड़ेगा. कोई दिक्कत? खत्म. अभी इलस्ट्रेशन में जाने का क्या? Yes, sir. पक्का? Yes. श्योर? Yes. गुड. Yes. चलो start with the illustration 1. Classify the activities that are operating, investing and financing activities. The cash equivalents. पहिला purchase of machinery, proceeds from issuance of equity share capital. Financing, cash sale, operating, proceed from long term borrowing. Pakka? Financing. Yes. Then checks collected from trade receivable. Operating, cash received from trade receivable. Operating, trading commission received. Operating. ट्रेडिंग है, समझा ना? Yes. Purchase of investment, redemption of preference share, financing, cash purchases, Operating. proceed from sale of investment, investing, then purchase of goodwill, Investing. Investing. उसके बाद cash paid to supplier, Operating. interim dividend paid, financing, wages salaried, operating, proceed from sale of patent. Investing. क्यों? एसेट बेचा है, Asset yes. लेकिन मेरा धंधा ही पेटेंट बेचने का रहा तो फिर ऑपरेटिंग. रॉयल्टी लेने का रहा तो ऑपरेटिंग. देखते, टेंशन मतलब. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंस. ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑपरेटिंग. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. ठीक. रेंट रिसीव्ड ऑन द प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. पक्का? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड. Operating. इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड. Finance. खत्म. अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंस. अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स के लिए देते ना. हाँ. रेंट पेड, ऑपरेटिंग रह सकता है. ब्रोकरेज पेड, क्या बेटा? सब इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टिंग. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके बाद बैंक ओडी. बैंक ओडी है, इक्विवेलेंट है. कैश. इक्विवेलेंट है ना. इसमें कैश फ्लो हुआ है क्या? नहीं. आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं. इनफ्लो हुआ है क्या? नहीं ना. हाँ, तो देखेंगे अपन, टेंशन मत ले. कैश क्रेडिट देखते. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बेचा नहीं है, कैश. कुछ भी नहीं बोला. हाँ 3 months. 3 months के बीच. Yes or no? हाँ. Highly liquid marketable securities without risk of change in value. एक्टिविटी नहीं है ना ये. तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ऑपरेटिंग. Operating. चलो अपन नीचे जाते. कैश इक्विवेलेंट देखो, एफएफ, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट एनी रिस्क. ये तीनों जो दिए सीसी डीडी ई, कहां पे दिख रहे तुमको? सीसी एंड डीडी फाइनेंस में दिख रहे. क्यों? बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट रिसीव्ड, तो विल कंसिडर्ड एज फाइनेंस. और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट है. यस, सो इट विल लुक्ड इन इन्वेस्टमेंट. कोई दिक्कत? ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा. ए कहां जाएगा? रेंट पेड, ऑपरेटिंग में. जीजी कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा. खत्म. जेड जो था तेरा अंडरराइटर्स कमीशन, फाइनेंसिंग में गया क्या? नहीं देखा. हाँ, खत्म. यस. तो तुम तो रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सपर्ट हो गए. अभी तुम अगर एक्सपर्ट हो गए तो यही यूज करने का है तुमको. क्या? क्लबिंग करते रहे. यस. पक्का? श्योर? खत्म. इलस्ट्रेशन 2. X Limited purchase debentures of 10 lakhs of Y Limited which are redeemable within 3 months. 3 months.
X Limited purchase debenture of 10 lakh of Y Limited, which are redeemable within 3 months. How will you show this item as per AS3 while preparing cash flow statement for the year ended 31st March 2021? Please tell me. 3 months के within वो cash liquidable Highly liquid investment हो गई वो within 3 months. within 3 months. मतलब ये क्या है? Cash equivalent. पक्का, श्योर, 100%, Yes. पक्का ना? पढ़ो आंसर. As per AS3 cash flow statement, cash and cash equivalent consist of cash in hand, balance with the bank, and short term highly liquid investment. If investment of 10 lakh made in debenture is for short period, then it is an item of cash equivalent. मतलब कैश और बैंक बैलेंस में तुमको उसको ऐड करना पड़ेगा. तू बोलेगा सर अपन ने डिबेंचर खरीदे मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, वाई इट शुड नॉट बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर उसकी मैच्योरिटी है तो उन्होंने क्या बोला है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट, तो उसको क्या कंसिडर करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अगर हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके ट्रीट करते तो उसको किस में ऐड करना पड़ेगा, कैश बैलेंस. सही बात है ना? हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट नीचे के लिए ना. However, if an investment of 10 lakh made in debenture is for long term period, then as per year 3 it should be shown as cash flow from investing. Yes. तो तुमको सेकंड व्यू भी देना पड़ेगा जो इसको आया था, तब तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे. अब तुम बोलोगे सर ये इसका, अरे एक एक दो दो मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे ना, मार के चले जाएंगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रही तो. तुमको कैश फ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व करने आता लेकिन तुमको बेस ही मालूम नहीं थ्योरी का. आज सोचो तुमने कैश फ्लो सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? आई टॉट यू कैश फ्लो बिफोर ऑल्सो, सम ऑफ यू. यस और नो? गाइस टेल मी, इतना क्लैरिटी आया था क्या? क्यों? थ्योरी तुमने पढ़ा नहीं था, तुम सीधा किसको घुस गए? जाने का आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज, यू ऑल नो, ऑपरेटिंग, टेंशन की जरूरत ही नहीं. देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी. देख, सब्सिडरी कंपनी से अगर इंटरेस्ट मिल रहा तो वो जा रहा है इन्वेस्टमेंट में. उसमें क्या किया है, टीडीएस सॉरी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट किसने किया? सब्सिडरी कंपनी ने. वो आउटफ्लो है. अपना अगर कोई बंदा टीडीएस कट करते उसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लो. अपन किसी का टीडीएस कट करते उसको क्या बोलते हैं? अपन ऐसा बोलते, लेकिन लिखते टाइम कैसे लिखते देखो. टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इतना लिखा तो भी चलेगा क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ. श्योर? उसके बाद क्या बेटा? थर्ड, डिपॉजिट विद बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 2 year. बेटा 2 year मतलब इन्वेस्टिंग, टेंशन की चीज ही नहीं है. उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड टुवर्ड्स द लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर. तुमको क्या बोला मैंने? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. जाएगा तो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. देखो लिखा है कि नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी शोन एज अ सेपरेट हेडिंग अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. जाएगा तो इन्वेस्टिंग में, बट सेपरेटेड दिखाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. लास्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. बेटा नॉन कैश आइटम है, कैश बाहर नहीं जा रही. तुमको तुरंत समझना चाहिए बैड डेट्स राइट ऑफ. बैड डेट क्या है? अरे साले मेरे को पैसा आना था, आया नहीं, मतलब मैंने उसको राइट ऑफ किया, क्या हुआ? हाँ, कैश फ्लो ही नहीं हुआ. डार्लिंग कैश फ्लो हुआ? समझा? क्यों नहीं हुआ? मेरे को पैसा आना था, आया नहीं, तो मैंने क्या किया? वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैंने उसको क्या किया? राइट ऑफ किया. मतलब मेरी कैश बाहर गई, खर्चा हुआ, लॉस हुआ, कैश बाहर गई क्या? इट्स नॉन कैश. देखो लिखा है क्या? इट इज नॉन कैश आइटम which is adjusted from the net profit loss under indirect method
to arrive at net cash flow from operating activities. Okay? Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझा? Yes. अभी फोर्थ इलस्ट्रेशन, अभी तुम थ्योरी में प्रो हो गए. और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. तुम उठते, पढ़ते और सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करते. तुम्हारे माँ की प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम पूरा जाम हो जाओगे. पर ये कंसेप्ट तुमको नहीं आएगी जब तक तुम थ्योरी नहीं पढ़ोगे. समझा गया? Yes, sir. तो अपना बेस क्या है, फंडा क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन सब इंपॉर्टेंट है. Yes. ये ईबीसी बीबीसी कुछ नहीं, अपने को पूरा करके जाने का और पूरा पेपर लिखने का है. खत्म. पक्का? सब इंपॉर्टेंट है. कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 मार्क के लिए आता है, लेकिन 2 मार्क का क्या कम इंपॉर्टेंट है क्या साले? 39 आए तो वो 2 मार्क ही पास करेंगे ना, 41 पे लेके जाएंगे फिर. Yes. तो किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो. हर एक चीज Important. इंपॉर्टेंट है भाई. फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन पूरा दिल से पढ़ो. ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम तुम 16 मार्क के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो. समझ रहे हो? Yes, sir. पर करके सब करके तो पूरा जाना है. कोई दिक्कत? नहीं. खत्म. आगे. फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. देखो कैश फ्लो का एब्स्ट्रैक्ट दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है. क्या बेटा ओपनिंग बैलेंस में? कैश बैंक कितना है? कितना है? श्योर? 10,000 70,000. शेयर कैपिटल शेयर इशूड कितने? 5 लाख. कलेक्शन फ्रॉम ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3.5 लाख. सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 70,000. पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल 90,000. सैलरीज एंड वेजेस 25,000. पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड 4 लाख. इन्वेस्टमेंट है. डिबेंचर्स रिडीम 50,000. ये चले गए तुम्हारे फाइनेंस में से. बैंक लोन रिपेड 2.5 लाख, ये भी वहां से चले गए. टैक्सेशन ऑपरेटिंग में चले गए. डिविडेंड देखते कहाँ से मिल रहा, क्या मिल रहा, इन्वेस्टमेंट में जा सकता है. क्लोजिंग बैलेंस क्या है? कैश 5, बैंक 10. ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. देख कुछ भी नहीं दिया है तो सिर्फ तुमको सेग्रीगेट करना है. कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा फाइनेंस है. Yes, sir. तो पहले उठाओ ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग में क्या बेटा? देख अकाउंट रिसीवेबल से कैश मिला है 3.5 लाख. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? खत्म. श्योर? ले लो. आया क्या देखो पहले, आया क्या डार्लिंग? चल अभी ऑपरेटिंग ही खत्म करते हैं. ऑपरेटिंग में पेमेंट टू पेबल्स ये 90 आ गया ऑपरेटिंग में. सैलरीज एंड वेजेस 25 आ गया ऑपरेटिंग में. पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000 आ गया ऑपरेटिंग में. Yes. यस और नो? Yes. टैक्सेशन आ गया क्या ऑपरेटिंग में? Yes. देखो है क्या 90 25 15 ये आया 220 फ्रॉम ऑपरेशन. उसके बाद टैक्स गया 55. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 1.65 पॉजिटिव. यस. अभी इन्वेस्टमेंट में जाते. देख मैंने 70,000 का एसेट बेचा है और 4 लाख का मैंने सर्कल मारा उसको और 4 लाख का खरीदा है. डाल दो 70,000 प्लस में 4 लाख माइनस में माइनस 3,30,000 कैश आउटफ्लो. इन्वेस्टमेंट में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है, कैश बाहर गया है. यस. उसके बाद क्या बेटा? फाइनेंस. फाइनेंस में देखते 5 लाख का शेयर कैपिटल इशू किया है. फाइनेंस का इनफ्लो है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes. उसके बाद बैंक लोन रिपे किया है, Outflow. आउटफ्लो. 50,000 डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, आउटफ्लो. डिविडेंड 1 लाख रुपया दिया है, Yes. Outflow. आउटफ्लो. खत्म. सो ये 3 चीजें ब्रैकेट में. Yes, sir. 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख और 5 लाख क्या बेटा? रिसीव्ड. मतलब 1 लाख क्या बेटा? पॉजिटिव कैश इनफ्लो. सो 2,65,000 का पॉजिटिव इनफ्लो है. 3,30,000 का क्या है? आउटफ्लो है. मतलब अपना ये साल 65,000 का क्या है बेटा? आउटफ्लो.
अभी ओपनिंग बैलेंस डालो। ओपनिंग बैलेंस क्या है तुम्हारे पास? 80,000 10 प्लस 70 80,000। तो माइनस 65,000 में 80,000 प्लस हो गए, कितने बचे बेटा? 15,000। देखो क्लोजिंग बैलेंस है क्या? 15, 5 एंड 10 है। हो गया प्रॉब्लम टैली। ओके, इलस्ट्रेशन 5 ये भी उसी टाइप का है, आया ना? उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज है, उसके नीचे भी प्रॉब्लम दिए तुमको, दिए कि नहीं? कहाँ पे दिए? 10 दिया है, 11 दिया है, वो भी छोटे हैं लेकिन सबके सब। तो तुम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो डिफिकल्ट रहे तो मेरे को पूछ सकते हो। तो अभी एक प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करके लेता है, पक्का ना? चलो कर लेते। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिर्फ इन्वेस्टिंग है, ऑफ मेसर्स क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31/3/2021। चलो क्या बेटा? इन्वेस्टिंग, पक्का? प्लांट एक्वायर्ड 1,56,000 बाय इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या? डिबेंचर इशू, अबे कैसे नहीं आएगा? डिबेंचर इशू कहाँ जाएगा? और असेट कहाँ आएगा? यहाँ पे। देने की जरूरत है क्या? अरे देने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कैश फ्लो हुआ ही नहीं है। सेकंड, क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर। देखो डार्लिंग क्या बोला था मैंने, ये तो इन्वेस्टमेंट में आएगा लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके दिखाना पड़ेगा। यस, देखो आंसर में दिया है क्या? एंड में देखो, सेकंड लास्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस में। ओके डार्लिंग, तो सेकंड का इफेक्ट दे दिया। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू द सब्सिडीज, बोला मैंने इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है, यस और नो? डाल दो, डाल दो, आउटफ्लो है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडीज 82,500 क्या है? इन्वेस्टिंग है, डाल दो प्लस में। अरे डाला क्या? देखो ना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। चलो प्री एक्विजिशन का डिविडेंड मिला, मिला ना इन्वेस्टमेंट की वजह से, चलो डाल दो। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड यहां पे नहीं आएगा, फाइनेंस पे जाएगा। टर्म लोन रीपेड, या कहां पे जाएगा? फाइनेंस, यहां पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 68,000, उसके ऊपर टीडीएस भी कट हुआ है 8,200, दोनों सेपरेट दिखाने के। 8,200 माइनस में दिखाओ, और 68,000 ये नेट वैल्यू है। यहां पे तुम कंफ्यूजन करते हो। एक डार्लिंग परफेक्ट। सो 68,000 तेरी क्या है? नेट है। उसके तेरे को ऐड करना पड़ेगा 8,200, मतलब कितना आएगा? 76,200 विल बी ग्रॉस वैल्यू। सो रिसीव्ड में ग्रॉस वैल्यू दिखाओ 76,200 और ब्रैकेट में डाल दो टीडीएस 8,200। तो इफेक्ट आ गया इसका, खत्म। नाउ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस इनकम 9,600, मतलब अपने को कैश उतनी नहीं है। देख 84,000 का मेरा क्या था? बुक वैल्यू था प्लांट का, उसके ऊपर मैंने 9,600 का क्या किया? लॉस बियर किया, मतलब मेरे को कैश कितनी मिली? 74,400। यस और नो? डाल दो उतनी, 74,400 डाल दो। कोई दिक्कत डार्लिंग? श्योर? सो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,97,700 आउटफ्लो। इनफ्लो कितना हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से? 49,600। सो नेट आउटफ्लो कितना है बेटा अपना? 1,48,100 ओवर। कोई डिफिकल्टी? पक्का 100% श्योर? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हुई? चलो अभी उसके बाद लेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या लेंगे? अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही है ना, तो अपन लेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।